نکاح کی رسم جیسے ہی پایہ تکمیل کو پہنچی، مہمانوں کے لیے کھانا کھول دیا گیا۔ شادی کی تقریب میں یہ مرحلہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ اس موقع پر عمدہ لباس میں ملبوس، شائستہ اور تہذیب یافتہ دکھائی دینے والے افراد کی تمیزداری اور اوقات کو بخوبی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس تقریب میں مدعو خواتین و حضرات میں سے اکثر اس طرح کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے جیسے کسی دشمن فوج پر دھاوا بولا جاتا ہے۔ ان کی اضطراری حرکات و سکنات اور دھکم پیل کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا انہوں نے زندگی میں پہلی بار اشیاء خورد و نوش کی شکل دیکھی ہے، یا پھر شادی و پکوان ہفت اقسام کو ٹھونسنے ہی کی غرض سے اس تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ اسی افراتفری میں ایک 2 نمبر جوڑا ایسا بھی تھا جو بانداز دیگر سوتنے پیلنے اور ہڑپنے کے ساتھ ہی بڑی صفائی اور مہارت سے چھپنے کا عمل بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر انہوں نے شادی حال کے ایک دور افتادہ حصے کا انتخاب کیا تھا تاکہ ان کی غیر نصابی سرگرمیوں پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایسا سوچا تھا، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس میدان حشر میں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، نظر اٹھا کر کسی دوسرے کو دیکھنے کی بھلا کس کے پاس فرصت تھی۔ شکورن اور عقیل کھا کم رہے تھے اور سمیٹنے پر ان کی زیادہ توجہ تھی۔ اس میز پر ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے انہیں کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ ویسے شکورن اپنے ہنر میں طاق تھی، آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی نگاہ بچا کر اپنا کام بطریق آسن انجام دینا اسے بخوبی آتا تھا۔ کیا ہم نے گھر میں بھیڑ بکریاں پال رکھی ہیں جو تم دوبارہ پلیٹ میں سلاد بھر لائے ہو؟ شکورن نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عقیل نے معتدل انداز میں جواب دیا، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے۔ شکورن نے سرسری انداز میں کہا، تمہاری لائی ہوئی سلاد کی 2 پلیٹوں کو میں نے ٹھکانے لگا دیا ہے، اب تم بریانی، قورمہ، بروسٹ، مچھلی اور میٹھے پکوان پر دھیان دو، اور ہاں، نان اور تافتان ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گیا۔ عقیل فرما بردار شوہروں کی طرح اسباق میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تمہارے پاس تھیلوں کا بندوبست تو ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ کبھی میرے انتظام میں کوئی کمی دیکھنے کو ملی ہے؟ شکورن نے اسے گھورا۔ ویسے تم نے یہ پوچھا کیوں؟ میں نے وہاں 2 قسم کا میٹھا رکھا دیکھا ہے، عقیل نے جواب دیا، شاہی ٹکڑے بھی ہیں اور خوبانی کا میٹھا بھی۔ اگر تم یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے پکوانوں کی رننگ کمنٹری سناتے رہے تو وہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا، شکورن نے ڈانٹ پلانے والے انداز میں کہا۔ فوراً کام سے لگ جاؤ۔ عقیل کے جانے کے بعد وہ چھپنگ کے انتظامات کا جائزہ لینے لگی۔ کھانے کی بھری ہوئی 6 پلیٹوں کو میز پر کچھ اس انداز میں سجا کر رکھا ہوا تھا جیسے دیکھ کر یہ محسوس ہو کہ اس میز پر خوب پیٹ بھر کر کھایا پیا جا رہا ہے۔ اس حسن انتظام کو دیکھ کر شکورن دلی دلی میں مسکرا دی، پھر جھک کر میز کے نیچے اپنے قدموں کے نزدیک رکھے ہوئے بیگ کا جائزہ لینے لگی۔ اس سے اپنا پرس میز کے اوپر ہی رکھ چھوڑا تھا اور مذکورہ بیگ کو سب کی نظروں سے چھپا کر قدموں میں ڈال رکھا تھا۔ اس سلسلے میں حد سے زیادہ لٹکے ہوئے میز پوش نے بھی ان میاں بیوی کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ زمین بوس بیگ کے اندر کھانا پیک کرنے والی تھیلوں کی کوئی قلت نہیں تھی۔ ابھی تک شکورن نے صرف 4 پارسل تیار کیے تھے، اس کے سامنے کم از کم 10 پارسل کا ٹارگٹ تھا۔ وہ لوگ شادی حال میں سے انواع و اقسام کا کھانا اتنی مقدار میں چھپا کر کے لے جانا چاہتے تھے جو 3 افراد کی ہفتے بھر کی ضرورت کے لیے کافی ہو۔ شکورن اور عقیل بڑے اصول پرست فنکار تھے اور ان کا یہی اصول تھا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک بار خوب بن ٹھن کر اپنے رہائش سے دور واقع کسی شادی حال میں ایسے اعتماد کے ساتھ داخل ہوتے تھے کہ لڑکی والے سمجھتے وہ لڑکے والوں کے مہمان ہیں اور لڑکے والے انہیں لڑکی والوں کی جانب سے بلائے گئے خیال کرتے تھے۔ انسان کا حلیہ درست، لباس شاندار اور حرکات و سکنات سے بھرپور اعتماد جھلکتا ہو تو کسی بھی شادی کی تقریب میں گھس کر ٹھیک ٹھاک طور پر پیٹ پوجا کرنا نہایت ہی آسان کام ہے۔ باقی جہاں تک وہاں کے کھانے کو چھپر کرنے کا معاملہ ہے تو اس کے لیے انسان کے اندر ایک مخصوص بے شرمی بردار فنکارانہ صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں میاں بیوی اس فن میں ید طولہ رکھتے تھے۔ وہ عرصہ دراز سے اس روش کی مسافرت اختیار کیے ہوئے تھے، اور مزے کی بات یہ کہ آج تک کسی کی نظر یا پکڑ میں نہیں آئے تھے۔ اس مسلسل کامیابی نے ان کے ہنر کی شمشیر کو سیکل کر دیا تھا۔ عقیل کے پھیرے وقفے وقفے سے جاری رہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کا بھرپور استعمال کر کے کھانے سے بھری ہوئی پلیٹوں کو میز تک پہنچانے میں مصروف رہا، اور شکورن نے بھی اپنی ذمہ داری سے لمحے بھر کی غفلت نہیں برتی تھی۔ انواع و اقسام کے پکوان میز تک پہنچنے کے بعد تھیلیوں میں بند ہو کر نہایت صفائی کے ساتھ زمین پر رکھے ہوئے بیگ میں اپنی جگہ بناتے چلے جا رہے تھے۔ اس فن میں وہ جوڑا منصرم درجہ اول ثابت ہوا تھا۔ رات کا 1 بجا تھا، مہمانوں کی واپسی کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں شادی حال سے نکل کر مین روڈ پر کھڑے تھے اور کسی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ ریڈی راشن والا بیگ عقیل نے اٹھا رکھا تھا، شکورن کے ہاتھ میں اس کا اپنا بیگ تھا۔ یہ تمہارا بھانجا کہاں رہ گیا؟ شکورن نے برہمی بھرے انداز میں کہا۔ اس کی آواز اس قدر بلند تھی کہ قرب و جوار میں موجود لوگ بآسانی اسے سن سکتے تھے۔ لگتا ہے آج کی رات سڑک کنارے کھڑے کھڑے گزارنا ہوگی، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا، عقیل نے آس پاس تک نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ اصغر کو فون لگاؤ، شکورن نے کہا، ذرا پتہ تو چلے کہ وہ ہمیں لینے آئے گا بھی نہیں، تاکہ ہمیں کچھ پتہ تو چلے۔ نالائق کو 2 مرتبہ کال کر چکا ہوں، عقیل نے بیزاری سے کہا۔ اس کا فون لگ نہیں رہا۔
मैं तो कहती हूँ असगर के चक्कर को छोड़ो और घर जाने के लिए कोई रिक्शा या टैक्सी देख लो। शकूरन अपने मियाँ को समझाते हुए बोली, असगर पहले कभी वक्त पर कहीं पहुंचा है जो आज यहाँ भी आ जाएगा, जैसे तुम वैसा तुम्हारा ये भांजा भी। तुम्हें तो जली कटी सुनाने के लिए बस कोई मौका चाहिए। अकील ने भी खफकी अमेज लहजे में कहा, बस शुरू हो जाती हो। वो दोनों इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक ऐसे हिस्से में मौजूद थे जहां सड़क की दोनों जानिब शादी हाल और मैरिज लॉन बने हुए थे और उनकी रहाइश वहां से काफी दूर थी। आइंदा 10 मिनट में अकील ने 3-4 रिक्शा वालों को ट्राई किया मगर बात बनकर नहीं दी। इन सालों को तो दिमाग खराब हो गया है, पैसेंजर्स की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अकील ने शकूरन के पास आते हुए सर पटाकर कहा, आधी रात के बाद ये कमीने किराए में 100% इजाफा कर देते हैं। उल्लू समझ रखा है आवाम को। आखिर हुआ क्या है? शकूरन ने पूछा, कितना मांग रहे हैं? 800-900 से कम कोई बात नहीं कर रहा। अकील ने झल्लाहट बने अंदाज में कहा, और ये आखिरी वाला तो 1000 से 1 रुपया कम में जाने को राजी नहीं हुआ। कमीना है किसी बेगैरत की नस्ल। शकूरन बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, तुम भी तो एक सुनकर नहीं देते हो ना। अब रिक्शे वाले का गुस्सा तुम मुझ पर निकाल रही हो। अकील ने शाकिल नजर से अपनी बीवी की जानिब देखा, मैंने क्या किया है? तुमने अगर कुछ किया होता तो फिर बात ही क्या थी? वो ताना मारने वाले अंदाज में बोली, कब से कह रही हूँ तुम भी एक टच वाला मोबाइल खरीद लो, मगर मजाल है जो तुम्हारे कान पर जूं भी रेंगती हो। टच वाले फोन का हमारी मौजूदा मुश्किल से क्या ताल्लुक है? अकील ने उलझल ज़्यादा लहजे में इस्तफसार किया। बहुत गहरा ताल्लुक है अकील। वो किसी फलसफे के अंदाज में बोली, मैं तो टच वाले मोबाइल फोन को मद्दे फाजिल समझता हूँ। जब बटन वाले मोबाइल फोन से काम चल रहा है तो खामखा का खर्चा करने का फायदा है, जब भी तो कह रही हो। वो मानी खेज लहजे में बोली, मगर तुम्हारे भेजे में कोई चीज आसानी से कहाँ घुसती है? मेरी हर कोशिश को तुम नाकाम बनाकर रख देते हो। मुनाकशा छोड़ो, बताओ इस वक्त तुमने टच वाले मोबाइल का जिक्र क्यों निकाला? देखो, अगर तुम्हारे पास टच वाला फोन होता तो तुम इसकी मदद से फौरन ठंडी मशीन वाली टैक्सी मंगवा सकते थे। शकूर ने समझाने वाले अंदाज में कहा, मैंने सुना है ऐसी ठंडी ठा टैक्सियों का किराया तो रिक्शे से भी कम होता है। हाँ, ये बात मुझे मालूम है। वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, ऐसी टैक्सी एयर कंडीशन होने के अलावा महफूज भी तस्वुर की जाती हैं, क्योंकि टैक्सी उसके ड्राइवर को कंपनी वाले अपने कंप्यूटर पर बआसानी देख सकते हैं। शुक्र है। शकूरन को यह गुना इत्मीनान हासिल हुआ। मेरी कोई बात तो तुम्हारी समझ में आई। मैं सब समझता हूँ शकूरन। वो बड़े फख्र से सीना फुलाते हुए बोला, तुम मुझे हल्का न लिया करो। वो दोनों दानिस्ता माहौल से बेखबर ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे जैसे वो इस वक्त अपने घर के अंदर बैठे हों, लेकिन माहौल हरगिज उनसे बेखबर नहीं था। वहां मौजूद अफराद बड़ी दिलचस्पी से इनकी चटपटी बहस और तकरार को सुन रहे थे। नतीजतन एक खुशबोश शख्स इनके नजदीक चला आया और शाइस्ता लहजे में गोया हुआ, मैंने आप लोगों की बातचीत सुनी है। आप सवारी के लिए परेशान हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? आप बजा फरमा रहे हैं जनाब। अकील ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। रिक्शा वालों को बस कोई बहाना चाहिए मुसाफिरों को लूटने का। जैसे जैसे रात का सफर आगे बढ़ता है इनकी कमीनगी का ग्राफ भी बुलंद होने लगता है। शायद ये भूल गए हैं कि मरना भी है। जब वक्त आएगा सब ठाट पड़ा रह जाएगा। आप लोगों को जाना कहाँ है? अजनबी शख्स ने सवाल किया। कोरंगी क्रॉसिंग, अकील ने बताया। मगर कोई भी हरामखोर रिक्शे वाला 800-1000 से नीचे की बात ही नहीं कर रहा। ओहो, वैसे कोरंगी क्रॉसिंग यहाँ से है भी खासे फासले पर। वो मुतसाफाना अंदाज में बोला, मेरा नाम रफीक शेख है। अगर आपको नॉर्थ की समझ जाना होता तो मैं आप दोनों को अपने साथ ले चलता। इस तरह आपका किराया भी बच जाता। गाड़ी में इतनी गुंजाइश तो होती है, मगर आप लोगों की मंजिल तो जुनूब का आखिरी किनारा है। एक मिनट भाई साहिब। शकूर ने रफीक शेख की तरफ देखते हुए पूछा, आप हमें किसी गाड़ी में बिठाने की बात कर रहे हैं? आप तो खुद हमारी तरह सड़क पर किसी सवारी के इंतजार में खड़े हैं। आपका अंदाजा किस हद तक दुरुस्त है खातून? वो नर्म लहजे में बोला, मैं अपनी सवारी का इंतजार कर रहा हूँ, मगर किसी रिक्शा और टैक्सी हरगिज नहीं। मेरा एक दोस्त अपनी कार में मुझे पिक करने आ रहा है। अगर आप पसंद करें तो मैं। नहीं भाई। अकील इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ा, हमारी मंजिलें एक दूसरे के मुखालिफ समत में वाक़ हैं। आप हमारी खातिर किसी तरद्दुद में न पड़े। अल्लाह मालिक है, हमें कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी। अगर आपने मुझे बात पूरी करने दी होती तो फिर आपको इस किस्म की वजाहत न देना पड़ती। मेरे कहने का मकसद कुछ और था। वो एक जुबान होकर बोले, आप क्या कहना चाह रहे थे? मेरे पास टच वाला फोन है। रफीक शेख ने ज़ेरेला मुस्कुराते हुए शकूरन की जानिब देखा, और इस फोन में ठंडी मशीन वाली महफूज कार मंगवाने की एप्लीकेशन भी मौजूद है। अगर आप पसंद करें तो मैं आपके लिए वो टैक्सी मंगवा देता हूँ। अगर आपको जहमत ना हो तो मंगवा दे जनाब। अकील ने मिन्नत पजीर लहजे में कहा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल में किसी की जरूरतमंद के काम आते हैं। इस नेकी का अजर अल्लाह ही आपको देगा। हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है तो बहुत कुछ। रफीक शेख अपने स्मार्टफोन के साथ मसरूफ होते हुए खुद कलामी के अंदाज में बोला, अगर आप देना चाहे तो। शकूरन और अकील ने चौंकस वाले नजर से एक दूसरे की तरफ देखा। रफीक की बात दोनों में से किसी के पल्ले नहीं पड़ी थी।
قابل इसके के वो रफीक से किसी किस्म का कोई इस्तफसार करते। वो खुशखबरी सुनाने वाले अंदाज में बोला, एक रेडिट के 450 रुपये आ रहे हैं। अगर कहीं रश में फंस गई तो 500 तक बन जाएंगे। 5 मिनट में गाड़ी यहाँ पहुँच जाएगी। मैंने कुरंगी क्रॉसिंग की लोकेशन डाली है, वहाँ पहुँचकर आपको ड्राइवर को गाइड कर दीजिएगा। आपका घर किस तरफ है? ड्राइवर का नाम इरफान है। लम्हात तवक्कुफ करके इसने सवाल नजर से अकील की तरफ देखा, फिर इजाफा करते हुए पूछा, ओके कर दूं? पहली फुर्सत में ओके कर दें जनाब। अकील ने जज्बात से मखलूब आवाज में कहा, आप तो हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए हैं। आपको अंदाजा नहीं कि हम इस वक्त किस मुश्किल में थे। अंदाजा है, इसलिए तो आपके पास आया हूँ, रफीक ने ठहरे हुए लहजे में कहा। और ये मैंने तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया है। ये दुनिया नेकी की ताकत से चल रही है। अगर हम एक चिराग से दूसरा चिराग जलाने की आदत डाल लें तो 4 दांग उजाला ही उजाला फैल जाएगा। इंसान की जिंदगी से मायूसी, दुख और दर्द की तारीकी छट जाएगी। अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि मैंने एक टैक्सी को कॉल करके तुम्हारे ऊपर एहसानात का बोझ डाल दिया है, तो तुम भी किसी इंसान के साथ कुछ छोटी बड़ी नेकी करके इस बोझ से निजात हासिल कर लेना। लो, तुम्हारी गाड़ी आ गई। बात खत्म करके रफीक ने एक तरफ देखा। चंद गज के फासले पर एक व्हाइट कल्टस कार नजर आ रही थी। रफीक ने हाथ के इशारे से इसे अपने पास बुला लिया। चंद सेकंड बाद मज़कूरा कार उनके नजदीक पहुंच गई। शकूरन और अकील रफीक शेख का शुक्रिया अदा करके गाड़ी में बैठने लगे तो शकूरन ने अपने अजनबी मोहसिन से इस्तफसार किया, भाई साहिब, आपने टैक्सी बुलाने से पहले कहा था कि आपको देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, फिर आपने कोई वजाहत नहीं की। आपकी इस बात का मतलब क्या था? मेरी मुराद दुआ से थी, रफीक ने मतानत भरे अंदाज में जवाब दिया। दुआ एक ऐसे अनमोल शय है जो हर कसो नाकस के पास बड़ी वाफिर मिकदार में मौजूद होती है, लेकिन देखने में अमूमन यही आया कि लोग इसके मामले में भी कंजूसी से काम लेते हैं। लम्हाते तवक्कुफ के बाद इसने गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, अगर कभी मैं आप लोगों को याद आ जाऊं तो मेरे हक में दुआ कर देना। दुआ दुनिया की सबसे कम कीमत और सबसे ज्यादा असर पजीर शय है। शकूर ने इत्मीनान भरी सांस ली और दिल में खुद से कहा, मैं तो समझती थी कि इस मोतबर और नफीस नजर आने वाले बंदे ने हमारे खाने वाले बैग पर नजर लगा रखी है। इंसानी जहन बैतुल अनकबूत की मानिंद है, जिसकी जकड़ में हर शख्स अपनी औकात और ज़र्फ के मुताबिक सोचता है। व्हाइट कल्टस में नसब ठंडी मशीन ऑन थी, जिसके तुफैल कार का अंदरूनी माहौल खासा खुशगवार हो गया था। बाहर हबस और गर्मी थी, मगर कार के अंदर वो दोनों खुद को बहुत मजे में महसूस कर रहे थे। आज वो जिस हफ्तावार मिशन पर निकले थे, इसका पहला मरहला उन्होंने बआसानी तय कर लिया था और अब दूसरा और आखिरी मरहला दरपेश था, जो पहले मरहले से कहीं ज्यादा हसास और तवज्जो तलब था। ताहम वो दोनों बड़े पुरएतमाद नजर आ रहे थे। इरफान, तुम कब से टैक्सी चला रहे हो? अकील ने ड्राइवर से सवाल किया। इसके इस्तफसार में बेतकल्लुफी पाई जाती थी। अकील और शकूरन कार की अकबी नशीस पर पराजमान थे। ड्राइवर ने चौंक कर बैक व्यू मिरर में पिछली सीट पर बैठे अकील की जानिब देखा और जवाब दिया, लगभग 1 साल हो गया है, मगर आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? इन्हीं साहिब ने बताया था जिन्होंने हमारे लिए तुम्हारी गाड़ी को कॉल किया था। अकील ने घड़ा जवाब दिया, रफीक मेरे ससुराली रिश्तेदार हैं, वो तुम्हारी आंटी के चचेरे भाई लगते हैं। चचेरे नहीं, फुफेरे, शकूरन ने फौरन तस्दीक करते हुए कहा, वो जुलेखा फूफी के सबसे बड़े बेटे हैं। चलो जो भी है वो तुम्हारे ही सगे हैं। अकील ने सुलगाने वाले अंदाज में कहा, हमेशा मेरे सगे ही तुम्हारे काम आए हैं अकील। शकूरन ने बड़ी नखवत से कहा, अगर अभी रफीक भाई ने हमारी गाड़ी नहीं बुलाई होती तो आज की रात शादी हॉल के बाहर रोड पर खड़े होकर गुजारना पड़ती। हाँ भाई हाँ, अकील ने मायने खेज अंदाज में कहा, हमारे घर में हर माह राशन भी तुम्हारे सगे ही तो डलवाते हैं। अब मेरा मुंह नहीं खुलवा वकील, शकूर ने उकसरे लहजे में कहा, तुम्हें तो इतना भी एहसास नहीं कि इस वक्त हम अपने घर में नहीं बैठे हुए, बस जहां मौका मिला शुरू हो जाते हो। अकील ने इस बहस को तूल देने के बजाय पसपाई इख्तियार की और खिड़की से बाहर देखने लगा। इन मियाँ बीवी के माबीन होने वाली नोक-झोंक से ड्राइवर लुत्फानंदोज हो रहा था। वो सुबह से लेकर रात गए तक शहर की सड़कों पर कार दौड़ाता रहता था। इसकी गाड़ी में भांत भांत के पैसेंजर सफर करते थे, लिहाजा इसे हर नौयत की बातें सुनना पड़ती थी। वो किसी के मामलात में दखल दिए बगैर अपनी पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज रखता था। ये इसके पेशे का बुनियादी उसूल था, जिसकी पाबंदी करना वो खुद पर लाजिम समझता था। लेकिन कभी कभी ऐसे झपकी और बतूनी मुसाफिर भी इसकी गाड़ी में बैठ जाते थे, जो इसे अपनी गुफ्तगू में उलझा लिया करते थे। अकील भी इसके लिए एक ऐसा ही पैसेंजर साबित हो रहा था। इरफान, तुमने गाड़ी को तो बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है। अकील ने दोस्ताना अंदाज में पूछा, ये गाड़ी तुम्हारी अपनी है या भाड़े की है? भाड़े की समझ ले, इरफान ने जवाब दिया। गाड़ी का मालिक मुझे तनख्वाह देता है। अगर तुम्हें बुरा महसूस ना हो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह के बारे में जानना चाहता हूँ, अकील ने नरम लहजे में कहा। दरअसल इस वक्त मैं कुछ सोच रहा हूँ। ये कल्टस में पिछले 2 माह से चला रहा हूँ और गाड़ी का मालिक मुझे 30,000 रुपये माहाना तनख्वाह देता है। इरफान ने साकुई को मुजाहरा करते हुए बताया, इससे पहले 10 माह तक मैंने आल्टो कार चलाई है,
वो मालिक मुझे 25,000 दिया करता था। तुम्हारी ड्यूटी कितने घंटे की है? अकील ने पूछा। 16 घंटे। इरफान एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला, मैं सुबह 10 बजे गाड़ी निकालता हूँ और फिर रात 2 बजे तक ऑफ करता हूँ। आप लोगों को मंजिल तक पहुँचाने के बाद मैं कईयों बाद अपने घर चला जाऊंगा। समझ लें ये मेरी आज की आखिरी राइड है और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अपने रूट के पैसेंजर मिल गए। ऐसा बहुत कम होता है। बाकी सब तो ठीक है, अकील ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, लेकिन ड्यूटी टाइम बहुत ज्यादा है। वो तो है मगर मजबूरी है अंकल, उस पाट आवाज में बोला। इंसान को रोजगार के लिए पता नहीं क्या क्या तकलीफ उठाना पड़ती है। इस दौरान में शकूर इन दोनों की गुफ्तगू शनीद से बेनियाज आंखें बंद किए सुकून से बैठी हुई थी। इसको देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ठंडी मशीन की लोरी भरी कूलिंग ने इसे नींद की हसीन वादी में पहुंचा दिया था या वो महज रिलैक्स कर रही थी। मैं तुम्हारी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ इरफान, अकील ने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। पेट का जहन्नुम भरने के लिए पता नहीं इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। बाज़ औक़ात तो रिज़्क़ के हुसूल की खातिर इंसान इंसानियत के मुकाम से क़ारे मुज़ल्लत में जा गिरता है। इसे बिल्कुल ये एहसास नहीं होता कि कब इसने अखलाकियात की हदूद को फलांग डाला है। खैर, वो सांस संवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, तो मुझे बताओ, अगर ये गाड़ी तुम्हारी अपनी हो तो सारे अखराजात निकालकर महीने का कितना कमा लोगे? इतनी ही मेहनत करके जो तुम इस भाड़े की गाड़ी के साथ कर रहे हो। कम अज कम 70,000 रुपए, इरफान ने जवाब दिया, और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख से ऊपर। ओह, फिर तो तुम्हारा सेहत बहुत ही थूथा है। इंसानियत से एकदम खाली है, अंदर से घुन लगा हुआ। अकील ने जहरखन लहजे में कहा, तुम इसके जुल्म से जान क्यों नहीं छुड़ा लेते? एक शेर के चंगुल से निकलूंगा तो किसी दूसरे की गुलामी का तवक गले में डालना पड़ेगा। इरफान ने मायूसी भरे लहजे में कहा, जब तक अपनी गाड़ी का मालिक नहीं बन जाता ये सिलसिला गुलामी इसी तरह चलता रहेगा अंकल। जिस गाड़ी में हम सफर कर रहे हैं इसकी कीमत कितनी होगी? अकील ने सरसराती हुई आवाज में सब्सार किया। ये 10 साल पुराना मॉडल है, इरफान ने बताया। 7 से 8 लाख के करीब मिल जाएगी। मेरा मतलब है साफ सुथरी और अच्छी हालत में। और 0 मीटर कितने की है? मेरा आइडिया है 15 लाख के आसपास, इरफान ने जवाब दिया। ओह, ये तो बहुत ज्यादा है। अकील ने ताजील अमेज लहजे में काफी पूछा, क्या 5 लाख की रेंज में कोई अच्छी हालत की गाड़ी मिल जाएगी? क्यों नहीं, जरूर मिल जाएगी, इरफान ने कहा। अगर मैं गलती पर नहीं तो अंकल, आप भी कोई गाड़ी खरीद कर इसे इस बिजनेस में डालने के बारे में सोच रहे हैं, है ना? तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, अकील ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। दरअसल मैंने 5 लाख की एक कमेटी डाली हुई है जो अगले माह मुझे मिल जाएगी। 5 लाख में तो आपको आल्टो और कोरे A1 कंडीशन में मिल जाएगी, इरफान ने कहा। बस के भरोसे का आदमी गाड़ी दिलाए तो, वरना इस लाइन में धोखा बहुत है। आपको एक से बढ़कर एक फनकार मिलेगा। मुझे तो तुम भरोसे के आदमी नजर आ रहे हो, अकील ने गंभीर अंदाज में कहा। क्या इस सिलसिले में तुम मेरी मदद नहीं करोगे? हो सकता है मैं वो गाड़ी लेकर तुम्हें चलाने को दे दूं, और वो भी 40,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर, और ड्यूटी भी सिर्फ 12 घंटे में समझता हूँ। तमाम अखराजात निकालकर मुझे भी 40,000 तक वो बच ही जाएंगे। ज्यादा की मुझे हवस नहीं, अल्लाह मुझ पर खासा मेहरबान है। आपको ड्रॉप करते वक्त हम कॉन्टेक्ट नंबर्स का तबादला कर लेंगे, इरफान ने खुशी से मामूल लहजे में कहा। फिर जब आपकी BC खुल जाए तो आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, बाकी के मामला हम बाद में तय कर लेंगे। इधर इरफान की बात मुकम्मल हुई, उधर अकील के सेल फोन की खतरनाक रिंगटोन वाली घंटी बज उठी। घंटी की आवाज में किसी वर्ग में ऐसी तेजी थी जो स्मार्ट को छीनती चली जा रही थी। ये तो गनीमत होगा अकील ने फौरन से पेशतर कॉल रिसीव करने में पता नहीं इस पुरसकून और ठंडे ठार माहौल में कौन सा खतर मच जाता। हेलो के जवाब में अकील ने दूसरी जानिब बोलने वाले को पहचान लिया और खफकिया में इस लहजे में पूछा, तुम कहाँ मर गए थे? दूसरी तरफ से जो भी कहा गया जाहिर है वो सिर्फ अकीली ने सुना। 1 मिनट रुको, हम इस वक्त गोरा कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं। वो कह रहा है अख्तर कॉलोनी में तुम्हें उठा सकता है, तुम बताओ क्या करना है? अकील के सेलफोन की सूर फूंकने वाली घंटी ने शकूरन को एकदम हशाश में शाश कर दिया था। वो तड़क कर बोली, मेरा कोई दिमाग खराब नहीं जो इस बहिश्ती माहौल को छोड़कर असगर के पट पाटे हुए चिंची रिक्शे में जा बैठूंगी। तुम इसे इनकार कर दो, तुम्हारी मुमानी मना कर रही है। हम 20-25 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, तुम हमारी फिक्र ना करो। दूसरी जानिब से असगर ने कुछ पूछा, हाँ, कोई परेशानी तो नहीं हुई? अकील ने जवाब दिया, सब कुछ प्रोग्राम के मुताबिक चल रहा है। शादी हाल में भी सब ठीक रहा। तुम नहीं पहुंचे तो तुम्हारी मुमानी के कजन रफीक ने हमें अपने टच वाले मोबाइल से एक ठंडी मशीन वाली कार मंगवा दी थी। हम ठीक हैं, 15-20 मिनट के बाद मिलते हैं। सेल फोन को जेब में रखने के बाद अकील ने इरफान को बताया, असगर मेरा भांजा है, हमारे साथ ही रहता है, अव्वल दर्जे का नालायक। शकूर ने जले भुने अंदाज में लुकमा दिया, चिंची रिक्शा चलाता है, मगर मजाल कभी हमारे काम आया हो। इसने हमसे वादा किया था कि शादी हाल के बाहर मिलेगा, मगर नहीं पहुंचा। अकील ने कई बार फोन किया लेकिन कोई खैर खबरी नहीं। ये तो रफीक भाई का भला हो के उन्होंने हमारे लिए गाड़ी मंगवा दी, वरना पता नहीं हमारा क्या हशर होता।
آپ لوگوں کی رہائش کرنگی کراسنگ پر ہے اور شادی اٹینڈ کرنے آپ نارتھ نظام آباد پہنچ گئے، عرفان نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جبکہ آپ کے ایریا میں تو لائن سے 50 سے بھی زیادہ شادی ہال اور میرج لان بنے ہوئے ہیں۔ جانا پڑتا ہے میاں، عقیل نے مدبرانہ انداز میں کہا، یہ کوئی ہمارے گھر کی تقریب نہیں تھی جو بغل میں رکھ لیتے، ہمیں جہاں بلایا گیا تو چلے گئے، ہر بندہ اپنی سہولت دیکھتا ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، کسی کی پرواہ کہاں ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل، عرفان نے تائیدی انداز میں کہا، ہمارے درمیان انسانیت صرف نام کی رہ گئی ہے۔ ایک بار پھر ان کے بیچ عقیل کی 5 لاکھ والی BC اور مستقبل قریب میں اس رقم سے خریدی جانے والی گاڑی کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ چل پڑا۔ اس مرتبہ شکورن اس منصوبہ بندی میں ان کے پیش تھی۔ کورنگی کراسنگ پر پہنچنے کے بعد عرفان نے نہایت ہی شائستگی سے پوچھا، انکل آپ کی رہائش کا کس طرف ہے، ذرا مجھے گائیڈ کر دیں۔ جب سے عقیل نے عرفان کو یہ روید مسرت سنائی تھی کہ وہ عنقریب ایک کار خرید کر اس کی کسٹڈی میں دینے والا ہے، تو اس کے بعد سے عرفان کے لیے اس کے دل و دماغ میں احترام کے جذبات موزن ہو گئے تھے۔ 40,000 روپے ماہانہ تنخواہ میں بڑی کشش تھی۔ ناصر جنب کی طرف لے چلو، عقیل نے سپاٹ آواز میں جواب دیا۔ 2 بجنے میں چند منٹ ہی رہ گئے تھے۔ کراسنگ والے شادی ہال جو میرج لانس کی رونقیں مان پڑ چکی تھی، وہ گہما گہمی جو چکا چوند اب کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، جو 3 گھنٹے پہلے کراچی کے اس علاقے کو بیت العروس بنائے ہوئی تھی۔ وہ لوگ اس وقت جہاں سے گزر رہے تھے وہاں قدرے ویرانی اور تاریکی کا راج تھا۔ تھوڑے فاصلے سے بجلی کے کھمبوں پر اسٹریٹ لائٹس نظر آتی تھی، باقی گرد و نواح اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بس یہیں سائڈ پر روک دو، عقیل نے معتدل انداز میں کہا۔ مگر یہاں تو مجھے آبادی کے آثار نظر نہیں آ رہے، عرفان نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ آپ ایسی ویران جگہ پر نہ اتریں، میں آپ کو گھر کے دروازے پر چھوڑ دوں گا، بتائیں کس طرف جانا ہے۔ ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، عقیل نے معنی خیز انداز میں کہا۔ یہاں سے ہم اصغر کے رکشے میں جائیں گے، وہ سامنے بلب والے کھمبے کی طرف دیکھو، تمہیں ایک رکشہ آتا نظر آئے گا، میرا بھانجا اصغر ہمیں پک کرنے آ رہا ہے، میں نے اسے یہیں پر بلایا تھا۔ عرفان نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو عقیل کا بتایا ہوا رکشہ سے نظر آ گیا۔ اس نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے گاڑی کو ویران سڑک کے کنارے روک دیا اور اندرونی لائٹ جلا کر اپنے سیل فون کے ساتھ مصروف ہونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ عقیل کی بدلی ہوئی آواز اس کی پاس سے ٹکرائی۔ اس کی ضرورت نہیں، موبائل کو گاڑی میں چھوڑ دو اور چپ چاپ شرافت سے باہر نکل آؤ۔ عقیل کی تحکمانہ آواز سے صفاقی تو جھلکتی ہی تھی، اس کے ساتھ عرفان نے عقیل کے ہاتھ میں خطرناک گن بھی دیکھ لی تھی جس کی نال اس کی کھوپڑی کی سمت اٹھی ہوئی تھی۔ عقیل کسی گرگے گرسنا کی مانند اسے گھور رہا تھا۔ عرفان کے رگوں پہ میں سراسیمگی پھیل گئی، اس لیے یقین ہو گیا تھا کہ اس وقت ایک خطرناک غنیم کے نشانے پر ہے جو کسی بھی لمحے گن کا ٹریگر دبا کر اس کی زندگی کا چراغ گل کر سکتا ہے۔ ان لمحات میں عقیل کے چہرے اور آنکھوں سے درندگی ٹپک رہی تھی۔ وہ پہلے والا انکل عقیل نہیں تھا جو راستے بھر اسے سنہرے مستقبل کے سہانے سپنے دکھاتا رہا تھا۔ عرفان پائے رفتن نہ جائے ماندن ایسی کیفیت سے دوچار ہو چکا تھا۔ عقیل کے حکم کی تعمیل کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اس نے سیل فون کمری سیٹ پر رکھ دیا اور نیم احتجاجی لہجے میں بولا، یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہو، یہ گاڑی سیٹلائٹ کے ذریعے ٹریک ہو رہی ہے، آپ کے جون ریکارڈ پر آ جائے گا، پھر آپ کے لیے کوئی بھی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ تمہیں ہمارے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عقیل نے پھنکار بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے سیٹلائٹ ویٹلائٹ سسٹم کی تو اس نے ناقابل اشاعت بدگوئی کرنے کے بعد گن کو دھمکیاں میز انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا، اب مزید کوئی بکواس نہیں، چلو باہر نکلو۔ اس دوران عسکر کا رکشہ بھی وائٹ کلٹس کے برابر میں آ لگا تھا۔ آئندہ 15 منٹ میں عقیل و شکور نے عسکر کی مدد سے اپنے ہفتہ واری مشن کے دوسرے مرحلے کو بھی مکمل کر ڈالا۔ عقیل عرفان کو گن پوائنٹ پر رکھ کر جب وقوع سے 200 گز دور لے گیا۔ اس عمل سے پہلے عرفان کی دن بھر کی کمائی مبلغ 2700 روپے اس سے وصول کر لیے گئے تھے۔ اس شب ظلمات میں شکورن اور عسکر نے عرفان اور اس کی گاڑی کو بڑی بے دردی سے مون ڈالا تھا۔ موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد عسکر نے شکورن کو اپنے رکشے میں بٹھایا اور وہ لوگ عقیل کے پاس پہنچ گئے۔ عقیل نے بڑی استادی کے ساتھ عرفان کو گن پوائنٹ پر رکھا ہوا تھا۔ عسکر نے عقیل کے نزدیک رکشہ روکا اور سرسراتی آواز میں کہا، اندر آ جاؤ۔ عقیل شکورن کے پہلو میں بیٹھ گیا، تاہم ابھی تک اس نے عرفان کو نشانے پر لے رکھا تھا۔ عسکر نے عرفان سے کہا، تم میرے برابر میں بیٹھ جاؤ۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ عرفان نے متوحش لہجے میں استفسار کیا۔ تم لوگوں نے مجھے لوٹنا تھا، لوٹ لیا، اب کیا ہے؟ اب تمہیں ڈراپ کرنا ہے کسی مناسب جگہ پر۔ عسکر نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، جلدی آ جاؤ، تمہاری رائڈ آن ہے۔ اگر میرا ارادہ بدل گیا تو ماموں ذرا آسرا نہیں کریں گے، میرے ایک اشارے پر تمہیں یہیں ٹھوک دیں گے۔ عرفان نے سہمی ہوئی نظر سے گن کی طرف دیکھا اور چپ چاپ عسکر کے برابر میں ٹک گیا۔ عسکر نے رکشہ آگے بڑھا دیا۔ جب وہ لوگ وائٹ کلٹس سے لگ بھگ 500 گز کے فاصلے پر آ گئے تو عسکر نے رکشہ روک دیا۔ نیچے اترو، اس نے عرفان کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا۔ عرفان کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب وہ رکشہ سے اتر آیا تو عسکر نے اس کی گاڑی کی چابی سے دیتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، چند گھنٹوں کے بعد سیر خیزی کے شائق لوگ
मॉर्निंग वॉक करने के अपने घरों से निकल आएंगे। ये अच्छा मौका है नाइट वॉक का। तुम खरामा खरामा चलते अपनी गाड़ी तक पहुंचो और इस वाक़े को एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ। इरफान किस्मत की सितम ज़रीफी पर खून के घूंट भरकर रह गया। इसने नफरत भरे अंदाज में तेजी से तारीकी का हिस्सा बने हुए मनहूस रिक्शे की तरफ देखा। रिक्शे की मखसूस तड़राहट के दरमियान इसे मकरू कहकों की सदा भी सुनाई दी। ये उन 3 बदकारों के कहके थे जिन्होंने आज इसकी ऐसी कम तैसी करके रख दी थी। 3 बजने में 3 मिनट बाकी थे। रात का आखिरी पैर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जमान टाउन के घर में इस वक्त 3 अफराद अपनी कामयाबी का जश्न मनाने में मसरूफ थे। उन्होंने एक बार फिर अपने हफ्तावारी मिशन की बखैर खूबी पाया तकमील तक पहुंचा दिया था। मुझे सख्त भूख लग रही है। असगर ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए नदीदा नजर से खाने वाले बैग की तरफ देखा। तुम लोगों ने तो शादी हाल में पेट पूजा कर ली होगी, लेकिन मैंने लंच के बाद अभी तक कुछ नहीं खाया। पहले काम फिर ताम और इसके बाद आराम। शकूर ने फैसला कुन अंदाज में कहा। मुमानी तुम भी कमाल करती हो। असगर ने मुंह बिगाड़ कर कहा, सब तो निपट गया, अब कौन सा काम बाकी है? तुम्हारी मुमानी का इशारा हिसाब किताब की जानिब है, अकील ने याद दहानी कराने वाले अंदाज में कहा। हमारा हमेशा से उसूल रहा है कि मिशन से वापसी पर घर आकर हम सबसे पहले माल गनीमत का जायजा लेते हैं, इसके बाद किसी दूसरे काम के बारे में सोचते हैं। समझ गया मामू, असगर तायदी अंदाज में बोला। तू शुमार करो आज कितनी उगाई हुई है, शकूर ने कहा। भाई 2700 रुपये तो कैश हैं, अकील ने मोतदिल अंदाज में कहा। बाकी टेक्निकल चीजों का हिसाब तो असगर ही लगा सकता है। मामू इसे भी कैश ही समझो। असगर ने 7,500 वाला एक प्राइस बांड अकील की आंखों के सामने लहराते मुसरूरकुन अंदाज में कहा। कम वक्त ने से ड्राइविंग साइड वाले दरवाजे की लाइनिंग अस्तर में छुपा रखा था। मुझसे होशियारी। इसका ये टच वाला मोबाइल कितने का होगा? अकील ने पूछा। है तो 20 के आसपास, मगर हम चुके हैं चोर मार्केट में बेचेंगे, इसलिए समझ लो 10,000 तक चला जाएगा, असगर ने बताया। अकील ने गहरी संजीदगी से पूछा, तुमने मोबाइल फोन को ऑफ तो कर दिया था ना? पहली फुर्सत में मामू, असगर ने फखरी अंदाज में अकील की जानिब देखा। मोबाइल हाथ में आते ही मैंने सबसे पहले इसका स्विच ऑफ किया था ताकि कार के कंपनी वाले या कोई और हमें ट्रैक ना कर सके। और इस टेप की क्या वैल्यू होगी? अकील ने पूछा। मामू ये डिजिटल ऑडियो सिस्टम है, असगर ने अकील की मालूमात में इजाफा करते हुए कहा। मैं इसके स्पीकर्स भी निकाल आया हूं, यह भी 10,000 तक निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर आज हमने 30,000 रुपए का बिजनेस किया है, अकील ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। हफ्ते भर का खाना इसके अलावा है। मेरे ख्याल में हमने कम से कम 15 दिन का धंधा कर लिया है। अब अगले हफ्ते में छुट्टी कर लेना चाहिए, आमदनी और भी ज्यादा हो सकती है, शकूर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मगर तुम्हारे भांजे ने मेरी बात नहीं मानी। तो क्या तुमने इसे पूरी गाड़ी ही उठा लाने को कह दिया था? अकील ने सवाले नजर से अपनी बीवी की तरफ देखा। नहीं मामू, असगर ने नफी में गर्दन हिलाते वजाहत कर दी। मुमानी का इसरार था कि गाड़ी में फिट ठंडी मशीन को भी निकाल लिया जाए, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं था। आपको तो पता ही है मामू, पुलिस की मोबाइलें रात गए तक गश्त करती रहती है। मैं खामखा बना बनाया खीर बिगाड़ना नहीं चाहता था। तुमने अक्लमंदी का सबूत दिया है भांजे, अकील ने सताशी नजर से असगर की तरफ देखा। इंसान को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जो हाथ लगा है इसे भागते भूत की लंगोटी समझकर गुजारा कर लेना चाहिए। मुमानी खाने में क्या है? असगर ने शकूर से पूछा। चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, ब्रोस्ट, फिश फ्राई और 2 किस्म का मीठा भी है, शकूर ने बताया। खुबानी का मीठा और शाही टुकड़े। मैं सबसे पहले चिकन बिरयानी की एक हल्की सी तय लगाना पसंद करूंगा, असगर ने कहा। इसके बाद फिश फ्राई से पूरा इंसाफ करूंगा। मैं हाल में फिश नहीं खा सका था, अकील ने कहा। तुम्हारी मुमानी ने सबसे ज्यादा मछली भरी थी। फिर से शकूर से पूछा, तुम क्या खाओगी? फिश फ्राई के सामने मेरी निगाह में कुछ नहीं जच रहा। वो ख्वाबनाक लहजे में बोली, बाकी सब कुछ तो हाल में खा लिया था, अब सिर्फ और सिर्फ फिश फ्राई। इसके बाद वो तीनों खाने में मसरूफ हो गए। इस दौरान में यह भी तय हो गया कि अब जो फैलकर सोएंगे तो फिर अपनी मर्जी से उठेंगे। अगर किसी की आंख खुल गई और इसे बाकी को सोते हुए पाया तो उन्हें जगाने की कोशिश नहीं करेगा। इस हफ्तेवारी मिशन ने इन तीनों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पूरी तरह थका दिया था। इन्हें एक तवील और पुरस्कून नींद की अशद जरूरत थी। इन तीनों ने किसी को डिस्टर्ब न करने पर साथ किया और लंबे तान कर सो गए। आइंदा रोज और अखबार ने इस सनसनीखेज और अफसोसनाक खबर को लगाया था। गुज़श्ता रात नाजिमाबाद के एक शादी हाल में जहरीली मछली खाने से 45 अफराद अस्पताल पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा शादी हाल में शादी की एक तकरीब चल रही थी, जिसमें मेहमानों की तवाज़ो के लिए अनवा अक़साम के दीगर खानों के साथ ही तली हुई मछली भी रखी गई थी। जिस मेहमान ने भी मछली पर हाथ साफ किया, इससे जल्द या बदेर अस्पताल की इमरजेंसी का रुख करना पड़ा था। बहरहाल इस नाजुक सूरत हाल को मुख्तलिफ अस्पतालों के इमरजेंसी स्टाफ ने बड़ी मुहारत और तनदही से फौरी तिब्बी इमदाद के जरिए मुतासरीन को अपने काबू में कर लिया था। कहीं से भी किसी इंसानी जान की जियां की इत्तला मौसूल नहीं हुई थी। ताहम शादी हाल से थोड़े फासले पर वाक़े एक कचरा कंडी के नजदीक
4 आवारा कुत्तों की लाशें पड़ी हुई थी। इन चारों को अस्पताल पहुंचाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो अपनी मौत मर गए। तहकीकात से पता चला था कि शादी हाल वाले बचा कुचा खाना इस कचरा कंडी में फेंक दिया करते थे। अगलब इम्कानी सी बात का था कि वो चारों बदनसीब कुत्ते शिकम सेरी के लिए कचरा कंडी की तरफ गए होंगे। किसी अखबार के जराए चाहे कितने भी बाखबर क्यों ना हो, फिर भी फौरन गुजारिश की गुंजाइश बाहर तो मौजूद रहती है। जमान टाउन के घर में पड़ी 3 लाशों की जानिब किसी का ध्यान नहीं गया था। उस रात 4 नहीं बल्कि 7 आवारा कुत्ते लुकमा अजल बने थे। अजल जब किसी शख्स को अपनी गिरफ्त में लेती है तो वो इंसान होते हुए भी कुत्ते की मौत मारा जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, लालच तमा किसी भी मामले में हो, इंजाम बिल आखिर खसारे में ही निकलता है। दौलत के हुसूल के लिए इंसान क्या क्या जतन नहीं करता, उसे हासिल करने के लिए हर तरीका आजमाता है, मगर इतनी तगोदो के बाद अगर किस्मत में नहीं लिखी तो सारी मेहनत और कारगुजारी अकारा चली जाती है। वो हरामखोर समझते थे कि इतनी ज़हनी और जिस्मानी मुशक्कत के बाद इनके नसीब में राहत ही राहत लिखी है।